वो सारे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके बच्चों के केसेस प्रोजेक्ट किए हैं, दे आर टुगेदर टुडे। Before we begin, I'd like to introduce all the panelists. I would like to begin with Dr. Yamini Adbe. She's a medical doctor by profession and a well-known child rights activist. She's known for being in the forefront when fighting in critical cases that impact children. And her biggest achievement in life, according to her, is that she's a mother. So welcome, and thank you for agreeing to be the moderator for today. There's a small token of appreciation from our side. Oh, thanks. Our panelists, it's actually a galaxy, so I'm so happy that they've given time to us. Let me start with the founder director, Pune Childline, and please accept our token of appreciation. Mr. Nakul Kate, he's a CWC member. So again, he's very well known in the forefront of child rights. And the aim of the program will be to discuss moral code of conduct of media in cases of children, that is crime against children and child crimes, assessing practical facts of reporting, that is when just by ignorance the boundaries are crossed, or maybe by negligence, or maybe to support the story, or make it look more authentic, or maybe by indirect ways, like the names and photos are not given, but the school, mohalla and parents' names are disclosed sometimes, not always. So this is kind of thing which is, it's not done intentionally ever, but these are the JJ Act violations, and they should be taken care how to do, what is the best way to come out of it. Your recommendations and discussions will be projected on a special platform on social networking site where people from all over the world will be reading and taking part in the discussions. So that is what we propose. What is amended Juvenile Justice Act? What does it say? Is it now complete? To give them safe, protected environment, or transparent and child-friendly coverage in media, or it requires still some amendments. Your say on this platform means a lot because your recommendations will be directed to the concerned ministers, authorities, child rights commissions. We will also discuss the problems and dangers of truthful reporting and the protection of media persons and activists required to make society a better place to live. Positive and result-oriented, supportive to the cause and constructive reporting of children with legal conflicts. The most important thing which will help in this workshop will be the outcome, which will be concrete with the concrete solutions, so that we have a small effort in changing the world. जन्मदिन मनाकर देखो, खिड़की से इंद्रधनुष दौड़ते चले आएंगे। रेलवे स्टेशन पर ठंड से बचने को बेंच के नीचे छिपे बच्चे पर अपना पुराना कोट डालकर देखो, अंधेरी रात में भी इंद्रधनुष उगाएंगे। कभी असहाय छोटे से बच्चे के हाथ में अपना हाथ रखकर देखना, उसकी गीली आंखों में सावन के बादलों से ज़्यादा इंद्रधनुष बिखर जाएंगे। इन इंद्रधनुषी सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में बात करना चाहूँगी। साधारण सी बात है कि जब हमें रास्ते पर बच्चा मिलता है, आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता है, अच्छा इंटेंशन होते हुए भी, कि हमें उसका क्या करना है, या बच्चे को इंजरी हुई है, उसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, आपको ये नहीं पता। इवन जो पेरीफेरी के पुलिस स्टेशन हैं उन्हें भी ये नहीं पता रहता है कि क्या करना है। सो इस बारे में एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एक कॉमन इसमें मैं वही बात करना चाहूँगी जिसमें मीडिया का रोल होना चाहिए। प्रोपोगेंडा या मीडिया में पब्लिशिंग डेफिनेटली इस कॉन्फ्रेंस का एम नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम्स डेफिनेटली इस एफर्ट का एम है। तो लेट मी कॉल डॉक्टर अनुराधा सहस्रबुद्धे। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी जगह है, संस्थाएं हैं जहाँ पे हम बच्चों को, जैसे रास्ते पे चलते कॉमनर को मिले कोई बच्चा, तो हमें उसका क्या करना है। जैसे उसको हमें सीधे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, पुलिस को भी कई बार पता नहीं रहता है कि हमें उसको क्या करना है। सो हाउ टू गो अबाउट इट, कौन सी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे।
एक तो बच्चे से बात करने का एक तरीका होता है, बच्चा जल्दी से बोलता नहीं है, डरा हुआ होता है, ट्रॉमेटाइज्ड होता है, तो उससे अच्छे से बात करके कोई एनजीओ की आप हेल्प ले सकते हो। पुणे में और बहुत सारे सिटीज़ में, करीब 200 सिटीज़ में, हर पूरे भारत में चाइल्ड लाइन के वर्कर्स आपको मिल सकते हैं 24 घंटे, उनसे आप बात कर सकते हो। और उसके बाद जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, डिपेंड्स ऑन किस टाइप का बच्चा है, अगर अब्यूज्ड है, अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो डिपार्टमेंट्स, सोशल वर्क डिपार्टमेंट्स जो हॉस्पिटल्स के होते हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट देने के बाद वो ट्रीटमेंट में मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि अगर ऐसे पकड़ो कि फिजिकली अब्यूज बच्चा है तो वो सेक्सुअली अब्यूज है कि नहीं, ये देखने के लिए एक यामिनी आपदेही होती है और दूसरा कोई डॉक्टर ऐसे देखता नहीं है। या तो अगर सेक्सुअली अब्यूज बच्चा भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो जैसे चाइल्ड लाइन जैसे लोगों को जाके बोलना पड़ता है कि वो ट्रॉमेटाइज्ड है, उसको साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट को भी दिखाओ, या तो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है कि नहीं, इसके बारे में भी आप देखो। और उसको और कोई ट्रीटमेंट फिजिकल या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत, क्योंकि एक टीम हम अभी प्रोपोगेट करेंगे, एक टीम चाहिए ऐसे बच्चों को देखने के लिए। तो उसमें मीडिया बहुत साथ दे सकता है कि जब कोई भी अब्यूज़ बच्चा हॉस्पिटल लिया जाता है या ऐसी कोई टीम यहाँ सिटी में चाहिए जो एक सोशल वर्कर, साइकियाट्रिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं CWC के, वो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई बंदा, और ऑर्थोपेडिक सर्जन, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट मैंने अभी बोल दिया, और पेडियाट्रिशियन, ये सबकी एक टीम बनने के लिए एक मीडिया की भी थोड़ा प्रेशर ग्रुप करके बनाना ज़रूरी है। ये बात एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई थी इसके बारे में, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, करीब अभी 10 साल उसको हो गए चेन्नई में, तब से ये बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स में कर नहीं पा रहे। बीच में रुकना चाहूँगी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मीडिया को रिक्वेस्ट करें एक छोटा सा कॉर्नर, जस्ट एक छोटा सा प्लेस, आज तो यहाँ सारे मीडिया चीफ्स उपस्थित हैं, तो क्या हम एक छोटा सा प्लेस मीडिया दे पाएगा हफ्ते में एक बार या कुछ, जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशंस जो इन बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं, जहाँ आपको, या इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स, can we go ahead that way? This is just a suggestion. Yeah, absolutely, it's a lovely suggestion. और कई सारे बच्चे ऐसे जो हमने जो संगठनाएं बच्चों की बनाई है, वो तो बहुत दिनों से मीडिया से ये डिमांड कर रही है कि हमें एक छोटा सा कॉर्नर आपके न्यूज़पेपर में दे दो, जो हम कहना चाहते हैं वो कह देंगे। या तो आप अगर ऐसी कोई सुविधा जैसे डॉक्टर अदबे ने अभी कही वो बना दो, तो उस टाइम वो बच्चे आके खुद अपना प्रॉब्लम बोलेंगे, तो वो डायरेक्ट जा सकता है जिनके तक जाना चाहिए। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। और ऐसी भी चीज़ें होती है कि कोई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो एनजीओ हैंडल नहीं कर सकती, जैसे कि चाइल्ड बेगर का इशू है। तो अगर चाइल्ड बेगर का इशू है तो वहाँ पुलिस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एकत्रित आना वो बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप की कौन सी केस है, इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि किसके पास मदद के लिए जाए, तो कौन सी केस है इस पे डिपेंड रहता है। लेकिन अभी मैं क्योंकि मीडिया का वर्कशॉप है, एक ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सब साथ में एक टीम बना के चले तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, प्रेशर ग्रुप बनाने में और ऐसी सिस्टम बनवाने में भी, और बाद में ये सिस्टम का भाग होने में भी। तो दोनों के लिए मीडिया का रोल है। और ये CWC, चाइल्ड लाइन और कोई NGO, लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब इकट्ठा आके एक जगह चाहिए जहाँ बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। कभी भी इकट्ठा एक मारपीट हुई है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारा कुछ होता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर, सेव द चिल्ड्रन मुंबई, इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है, हाउ अबाउट इट, कि उन्होंने वो ऐप में सारे इमरजेंसी नंबर्स हैं जो हर एक कोई डाउनलोड कर सकता है अपने फ़ोन पे, और कैसा भी बच्चा मिले उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसमें अल्फ़ा ने वो ऐप डेवलप किया है, प्रपोजल में है, दे आर अबाउट टू डू दैट एंड दे आर कलेक्टिंग डाटाज फॉर दैट। हाउ अबाउट कि हम पूना में वैसा कुछ करें, एक छोटा सा प्लेस। चैत्राली कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिएगा। Entire city police station, all the I think so the Pune city police and the rural police station have set up with social security cell,
and where like entire India they have, after the Muskaan PIL which was filed in 2012-13 I think so, and they have given the directions in which like if you find some child, immediately the nearby police station you must report that child. His pictures will be clicked, and even if the recently even the state Maharashtra CID is working on it, and I think so in 3 months some 13-14 children were rescued in a similar way. Most of the children which were found in Pune and these near the railway tracks and everything, they were sent to UP, and most of them from UP and Bihar. And yeah, I think Sathi is also working for it. Muskaan के लोग हमारे यहाँ representatives हैं, so let's do a clap for them. And कौन है मुस्कान के आए हैं अभी ना, आगे हैं? Yes. So congratulations. Okay. So anyhow, congratulations, ma'am. What I say, Mr. Nitin Gaikwad, I would like to like your opinion to get. He is not come. Okay, he was supposed to be. Not an issue. तो एक ये just suggestion है, जो भी note कर रहा है उसे recommendations में ये note करना होगा. दूसरी बात ये होती है कि पुणे पुलिस ने जो social, I think we have the best lot of police. But Anuradha, do you remember we had to run 200 kilometers in a day just to register a case? Police, I think we need to talk. I think Supriya is also there, Rama is also there. It's a team who have been fighting with the police. I think they, अगर कोई रास्ता होता joint सुपारी देने का, तो हम चारों आज यहाँ नहीं होते. That is the fact, पुलिस ने हमारी सुपारी दी रहती. That is a very indecent kind of thing approach. But I am telling because it's a in-home discussion. तो क्या होता है कि पुलिस को SOPs दिए गए हैं, उन्हें बता दिया गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ऑफ अप्रोच आपका क्या होगा. बट हार्डली आई हैव सीन इवन अ सिंगल पुलिस. अगर ऐसा होता तो मुझे और अनुराधा को एक दिन में सूजे हुए पैरों के साथ, अनुराधा हैड हाई ग्रेड फीवर, और हमें 200 किलोमीटर गाड़ी चला के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर के, आई एम सॉरी, इतनी लड़ाई हुई थी कि अनुराधा को लगा कि मेरी लड़ाइयों की वजह से हम दोनों अंदर जाने वाले हैं. एंड इट वाज ए केस ऑफ एब्सोल्युटली 302 मर्डर का केस था, जिसमें हम मदर, फादर और ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर एंड डॉक्टर, इन 5 लोगों को सिर्फ अरेस्ट करने को कह रहे थे. एंड दे वर नॉट डूइंग, तो मुझे ऐसा कहना है कि सर सिचुएशन ऐसी है, मीडिया इन चीज़ों में जहाँ लैप्सेस दिख रहे हैं सिस्टम के, मीडिया का रोल ये होता है, होता रहा है, मैंने तो हमेशा देखा है कि सिस्टम चेंज करना है. रिपोर्टिंग के साथ अगर सिस्टम चेंज कर रहा हो तो बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा. अरुण, क्या कहना चाहेंगे? बात हो रही है कि कम्युनिकेशन एक काफ़ी बड़ा और मेजर फैक्टर होता है. जैसे हम कह रहे थे कि क्या कर सकते हैं, हम इकट्ठा आना चाहिए, हफ्ते में चाहिए या किसी भी तौर पे, किसी भी तरीके से. आजकल सोशल मीडिया एज एन एग्जाम्पल, व्हाट्सएप ग्रुप इतना सिंपलेस्ट एंड प्रभावी माध्यम है. जैसे इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका एक अगर ग्रुप बन जाए जिसमें CWC कमेटी के कोई चेयरपर्सन, चेयरमैन है वो होंगे, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट का कोई है तो वे लोग रहेंगे, आप जैसे कार्यकर्ता रहेंगे, और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव. हर जगह कुछ अगर थोड़ी सी भी घटना घटती है तो वो शेयर की जा सकती है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं. और ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जैसे अभी आज हम शायद 2 हफ्ते पहले या महीना पहले एक सजग नागरिक मंच नाम का ग्रुप पुणे में, व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह की डिस्कशन है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, यहाँ की डेवलपमेंट की पॉलिसीज को. तो ये काफ़ी अहम भाग है. दूसरी बात है, जहाँ तक मीडिया का काम है, तो मीडिया एक तरह से एक पोषक वातावरण क्रिएट कर सकती है. एक्टिविस्ट के तौर पर उन्हें लिमिटेशंस है, मर्यादा है, ये हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा. न्यूज़ जिस तरह की आती है, केसेस पे डिपेंड होता है कि उसे किस तरह से हम हाईलाइट करते हैं, किस तरह से उसका फॉलोअप करते हैं. जैसे विद्यावती आश्रम वाली बात हो या फिर मंदार से बात हो रही थी अभी आते आते, श्रीनगर स्कूल में जो मामला हुआ था, वो भी ये था कि बच्चों की आइडेंटिटी नहीं दिखानी चाहिए. ये जरूर हम करते हैं. जहाँ तक लीगल, हम तो उसके क्या आगे चलकर ये सोचते हैं कि क्या लीगली राइट है और क्या मोरली राइट है.
लेट इट बी लीगली कुछ भी हो। हमें एक मेरा मन नहीं कहता है कि इस लड़का या लड़की बच्ची की आइडेंटिटी है उसके पेरेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, ये हम समझते हैं। लेकिन दूसरी ओर मीडिया का दूसरा जो एक चेहरा है वो सोशल मीडिया है। हमने काफ़ी लोगों ने देखा होगा कुछ महीने पहले एक क्लिप मोबाइल पे घूम रही थी, सर्कुलेट हुई थी, किसी मॉल में एक छोटा सा बच्चा है और उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसका अब्यूज हो रहा है। तो उसके ऊपर उस बच्चे का चेहरा तो सोशल में मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, कि यूट्यूब पे आ गए, वहाँ पे तो कुछ ब्लर नहीं किया है। तो ये मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कि सोशल मीडिया पे जो चलता है उसे हमें कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन सेंसिटाइजेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं एक बात। और दूसरी हमारा जैसा ऑर्गेनाइज जो मीडिया है उसमें तो जरूर जो सूचनाएं हैं और जो भी कुछ पॉइंट्स आते हैं हम हमेशा उनका स्वागत। ये बहुत पते की बात की है कि खाली मीडिया सेंसिटाइजेशन से क्या समाज बदलेगा। मीडिया का कहना है कि वो सर्व करता है जो लोग पढ़ते हैं, वो लिखता है जो समाज पढ़ना चाहता है, वो बेचता है जो लोग खरीदते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी आप बताएं, अगर समाज, क्या आप वो वाले चैनल्स देखना ज़्यादा पसंद करते हो जहाँ श्क्यों करके नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, या आप वो वाले चैनल्स ज़्यादा पसंद करते हो जिसमें सिंपल न्यूज़ डिसेंट वे में बता दी जाती है? नाउ इट्स ऑन यू कि क्या खाली मीडिया समाज का आईना है, तो क्या समाज को बदलना ज़्यादा जरूरी है? तो शायद अगर समाज को बदलने के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है समाज को बदलने के लिए भी तो मीडिया की हेल्प चाहिए, बिकॉज यू आर ए वेरी पावरफुल मीडियम हु कैन चेंज द सोसाइटी। केशव सर, आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं इस परिस्थिति को जूझने के लिए? Yeah, I think the entire discussion which we are going through, it will be about some cases which have happened, but I would like to bring it in a broader platform, and that broader platform would be, okay, we understand that we have to sensitize media, but we should try to understand whether media really like children or not. What is the importance given to children on media? Unfortunately, I think that not much importance is given to children on media, including our Doordarshan and a private channel. If you see the percentage of the programs dedicated to children, it is very minimal, it is very low. I don't understand why it is happening, number one. Number two, as you said, the parent also should be sensitized, society also should be sensitized. My first assertion would be we should not distinguish between media, lawmakers, NGOs, society. We are part of it, but we are playing a different role. So we are a cohesive society and we should try to run on that. So the isolation would not help us at all. Number third point, that whether we have got a children policy as such on our country level, we have a policy for children. I think when we see that in the next decade, we are now the youngest country in the entire world. The youngest country means the best of the chunk of children is with us. That's why we are in this country. If we want to boast on that, we should try to nourish and cherish our children. Third important point I would like to make is about, we always look at the children from a top angle. We never look at the children from the same angle. And that's why we do a program on children with our perception, not with their Very perception. correct, sir. And that's why I think there are so many issues we will discuss in later. But I think the policy of the children should be maintained, and we must have a national policy that half an hour program to be given on television channel, and it should come from the top, from INB Ministry. Luckily, our INB Minister is Arun Jaitley, he is a legal luminary and he understands the requirement for children's rights. So we should try to really give this suggestion to the ministry. Thank you so much, sir. This was great. Let me tell you, guys, in Media Code of Conduct, there is a concept, and it is approved concept. It is, it has, अगर किसी को चाहिए तो वो copy करके हम दे देंगे. The thing is कि उसमें वही चीज़ कही गई है, बहुत सारे experiments, बहुत सारे trials और बहुत सारे research के बाद कि बच्चों पर मीडिया का कितना रोल है। बच्चा 3 ढंग से मीडिया को सपोर्ट करता है।
वो मीडिया को न्यूज़ देता है, वो मीडिया को सपोर्ट करता है, पर वो मीडिया जब मीडिया थोड़ी सी शिकायतें हैं सर, आई थिंक टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, द थिंग इज कि जब मीडिया बच्चों की रिपोर्टिंग कर रहा रहता है तो क्या उसमें उस बच्चे का व्यू छापा जाता है? नहीं छापा जाता है। हम सोचते हैं वो छोटा है, वो कितना समझेगा। इज इट द राइट थिंग? हमारे पास एक एक बच्चा है जो बता पाएगा। कम टेक द माइक, इधर इधर। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरा नाम स्वप्निल कुचेकर है। जोर से बोलेंगे। मेरा नाम स्वप्निल विकास कुचेकर है। कुछ अच्छा। स्वप्निल तुम जब स्कूल जाते हो और तुम स्कूल में तुम्हें कोई अवार्ड मिलता है, तुम्हें कैसा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है जब अवार्ड मिलता है, कोई प्राइज मिलता है तो, कोई गिफ्ट मिलता है तो? मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है। फिर किसी दिन तुम होमवर्क नहीं करते हो तो तुम्हें टीचर क्या करती है? टीचर पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट देती है। अगर वो पनिशमेंट वाली बात मैं तुम्हारे न्यूज़पेपर में डाल दूँ, तुम्हारा हाँ, मैं अगर न्यूज़पेपर में डाल दूँ तुम्हारे सब फ्रेंड्स को पता चल जाए तो तुमको कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तुम मुझसे बात नहीं करोगे सुजी? अच्छा, अगर समझो तुमसे पूछ के डाला जाए मैं डालूं क्या, तो तुम परमिशन दोगे डालने की? नहीं दोगे। अगर समझो वो मैंने ये नहीं डाला कि स्वप्निल ने होमवर्क नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिली, मैं कहूँगी स्वप्निल के पापा के बेटे ने होमवर्क नहीं किया, पर सबको पता चल जाएगा कि तुमने नहीं किया, तो तुम्हें बुरा लगेगा? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम कुछ कहना चाहोगे उस समय? नहीं कह पाएंगे। बच्चे हेल्पलेस होते हैं। थैंक यू स्वप्निल, बैठो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो सिंपल शब्दों में वो बहुत कुछ कह गया। हम सोचते हैं छोटे बच्चे समझते नहीं हैं, वो क्या कहेंगे? मेजर इशू 302, 357, बड़े बड़े सेक्शंस के नाम हम लेते हैं, पर उसमें जो विधि संघर्षित बच्चे हैं ना, वो समझ रहे रहते हैं। और हमारी वो स्टोरी वो दिन टीआरपी बहुत अच्छी लेती है, बहुत अच्छी जाती है, हमें बहुत तारीफें मिलती है। Madam, one point I would like to make. National Broadcasting Association has circulated all these rules, regulations in 2012 to all medias, and to DAVP, all advertising agencies, all people. So I think they know this and they must follow, but there are some lapses I understand, so we should try to cover. Yes, मेरा अभी का क्वेश्चन ये है कि उन लैप्सेस के लिए कैसे सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं। कई बार जोश में, कई बार नेग्लिजेंस में, कई बार स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए गड़बड़े हो जाती हैं। मोहल्ले का नाम या स्कूल का नाम भी डिक्लेयर हो जाए तो भी हो जाती है। मीडिया की मजबूरी है कि अगर वो नहीं लिखेगा कुछ भी डिटेल तो लगेगा फेक स्टोरी है। सो इट्स ए लाइव क्वेश्चन। मंदार, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। माइक दे दो दूसरा। हेलो। तो बहुत कॉम्प्लेक्स ये सब इशू है हमारा, जो आज का डिस्कशन का पॉइंट है, सेंसिटाइजेशन, मीडिया सेंसिटाइजेशन। तो दो तीन चीज़ें आपने कही, सर ने भी कही कि इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा हम दूसरी तरफ से भी देखना चाहिए कि मीडिया सेंसिटाइज करता है। मीडिया हैज इट ओन लिमिटेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट है, आपने अभी कहा कि रूल एंड रेगुलेशंस है, वो तो मीडिया फॉलो करता है, करना ही पड़ता है, नहीं तो मीडिया को डेफेमेशन वगैरह फेस करना पड़ता है। दूसरी बात है कि ये करके भी मीडिया, आप कह सकते हैं कि सेंसिटाइज करते हैं। कोई कहता है कि बहुत सेंसिटाइज करता है कोई भी इशू, मैं उसको दूसरी तरफ से देखता हूँ कि मीडिया उतने बड़े पैमाने पर अगर वो नहीं दिखाता है, नहीं वो इतना एक्सप्लोर नहीं करता है, तो उसका इफेक्ट भी नहीं होता है। अपना ही एग्जांपल है, ये आश्रम की हमने जो स्टोरी की थी, कि कोई इसको कहता है कि बहुत सेंसिटाइज किया गया मीडिया की तरफ से, लेकिन उतना अगर नहीं करते हम तो हार जाते हैं, बच्चे नहीं ढूंढ पाते। आपने ही कहा कि आधी लड़ाई हम हार गए, क्योंकि जो है आधी तो हम जीते क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हमने दिखाया। दूसरा एग्जांपल था अपने सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट का, तो उसको भी मीडिया ने बहुत ये किया है। तो इसका असर ऑब्वियसली जो बाकी जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं उनके ऊपर होता है, जो शायद टल जाते हैं, टल भी गए होंगे।
तो मीडिया का इफेक्ट, टीआरपी की बात तो हर कोई करता है कि मीडिया सब टीआरपी के लिए करता है, तो ऐसा नहीं है। टीआरपी लोग जो देखना चाहते हैं वही मीडिया दिखाता है, टीआरपी के लिए करता है। ये ठीक है, ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मीडिया को रिजल्ट्स भी चाहिए होता है कोई चीज़ में। अगर कोई इतने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, तो कोई भी जर्नलिस्ट अगर कोई स्टोरी करता है, ओपन करता है स्टोरी, शुरुआत करता है, तो उसको एक्सपेक्ट होता है कि उसका रिजल्ट निकले, कोई ना कोई उसका कंक्लूडेड एंड हो, इम्पैक्ट हो। तो ये उसी वक्त होता है कि जब आप उतने बड़े पैमाने पर वो देते हैं। शायद कोई लोग उसको सेंसिटाइजेशन कह सकते हैं। सेंसिटाइजेशन है, ये इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी अभी वैसी है। एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन एग्जाम्पल है, कल ही हमारे देश में हुआ है, जो निर्भया कांड हुआ था। तो उसकी माँ ने कल आके खुद की आइडेंटिटी रिवील की और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का नाम ज्योति सिंह था। तो उन्होंने कहा कि जो कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि जो विक्टिम है वो मुंह छुपा के पूरी जिंदगी जिए। तो ये हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी का भी इशू है कि जो विक्टिम है वही अपने जो उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो वैसे ही छुप छुप कर वो अगर वैसे ही सहन कर लेता है, क्योंकि किसी को पता न चले, मीडिया में कोई बात ना आए, तो वो वैसे ही चल जाता है। तो हमारे सोसाइटी की जो सोच है उसको बदलना भी जरूरी है। और रफा दफा होने के मामले भी है, जैसे कि पुणे में ही घटना घटी थी शायद 2-3 महीने पहले, किसी येरोड़ा एरिया में कोई है अनाथालय है, वहाँ पे जो हुए थे, तो केस सामने ही नहीं आया। हफ्ते बाद कुछ बाहर आया, वो हमारा केस था। नकुल, आई थिंक आई नीड टू शूट यू फॉर दैट। दो पॉइंट्स है एक्चुअली कि जो आइडेंटिटी हमें नहीं डिस्क्लोज करनी है वगैरह, लेकिन जैसे कि मैं अपने चाइल्ड लाइन में बोल के रखी हूँ सब मेरे टीम को कोई मीडिया से बात नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ऐसे इनिशियल स्टेजेस में मैं भी क्या बोलते हैं मराठी में कच्चा लींबू कच्चा मडकं थी, तो मीडिया कैसे अपना मतलब निकालता है इसका अनुभव भी मुझे नहीं था। तो उनको स्टैटिस्टिक चाहिए, उनको डिटेल्स चाहिए, तो इतना खोदेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि हम कब गलत चीज बोल गए जो नहीं बोलनी थी। तो गलत चीज होनी क्यों चाहिए? नहीं, मेरा प्रश्न ये है, नहीं गलत मतलब गलत क्यों हो? बात सुनिए, रिवील जो करना नहीं है वो कब बोल गए ये पता नहीं चलता, इसलिए मैंने अभी टीम को बोल के रखा है, नहीं सिर्फ मैं बात करूंगी। हाँ, तो ये एक चीज है। और दूसरी एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसे आपकी वजह से ये बड़े बड़े केसेस एक्सपोज जरूर होते हैं, लेकिन आप लोग फॉलो अप नहीं रखते हैं। जैसे अभी वो कर्जत का केस हुआ था, मैं 100% उसको आपको क्रेडिट देती हूँ कि क्योंकि मीडिया हमारे साथ, या तो जो MLAs ने चाइल्ड मैरिजेस करवाए थे कई साल पहले, जब मेरे को सिक्योरिटी लेने की जरूरत पुलिस को पड़ी थी मेरे को सिक्योरिटी देने की, तब वो टाइम में भी जब MLAs और कॉर्पोरेटर्स में MLA फंड से चाइल्ड मैरिजेस पुणे में करवाए थे, वो भी केस इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि मीडिया ने CP को घेर के रखा था। मुझे आज तक याद है कि चप्पळगावकर तब थे, आज वो नहीं है हमारे साथ। उन्होंने मुझे CP ऑफिस से फोन किया था, ताई आता तुम्ही काळजी करू नका, आम्ही यांना घेराव घालून बसले, उठत नाही हे उत्तर देईपर्यंत। उनको बहुत बड़ा प्रेशर था CP पे कि नहीं बोलना है वगैरह। तो ये बातें जरूर मीडिया पॉजिटिविटी है, लेकिन उसके बाद में क्या, अभी कोई पूछता भी नहीं है कि कर्जत केस का क्या हुआ है, अभी भी वो चल रही है। पॉक्सो केस है बाबा, 35 चिल्ड्रन हैव बीन बैडली अफेक्टेड, ये कोई पूछता भी नहीं है अभी, और हम बताने जाते हैं कि आप देखो तो भी नहीं, नोबडी इज इंटरेस्टेड। मीडिया उस समय बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा था। मैं थोड़ा इससे अलग राय रखता हूँ कि मैडम ने कहा कि मीडिया बस अपने मतलब की चीज निकालता है। तो मीडिया कोई ये ऐसा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है कि वो निकाल ले कोई चीज, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि मीडिया को आप वो बताए, आप जो कुछ बताना है वो आपकी इच्छा है। आप ना भी बताए तो भी मीडिया न्यूज कर देता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये हमारा आज का जो डिबेट है वो आपस में कम्युनिकेशन बढ़े, इसकी वजह इसके लिए है। इसीलिए मैं ये पॉइंट्स रेज कर रही हूं। बढ़ेगा तो ये बातें नहीं आएंगी। मीडिया ऐसा कुछ नहीं दिखा, खुद भी नहीं चाहता है, दिखा भी नहीं सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट है, डिफेमेशन हो मेरा थोड़ा सा अलग है कहना। हाँ,
मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी कोई चीज छुपी हुई क्यों हो हाँ, कि जिसे छान के देना पड़े या फिल्टर करके पहुंचाना पड़े। अगर बच्चा है उसको अगर एक्सप्लोर नहीं करना है तो वो सही बात है, मीडिया नहीं भी करता है, लेकिन मीडिया बस अपने मतलब की चीज निकालता है, बस टीआरपी के लिए करता है। ये भी थोड़ा सा सोच है बदलनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। एक मिनट, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ कि इसके वजह से आप न चाहते हुए भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हैं ना वो इतना मीडिया सेवी नहीं है। जैसे कि अभी वो करजत के टाइम में भी मेरे को अभी याद आ गया कि जब बच्चों का CWC के सामने डिपोजिशन चल रहा था और हम लोग अंदर थे, तो मीडिया ने क्या किया, पूरा मीडिया का सपोर्ट था, इसीलिए वो केस स्टैंड हुआ है, ये भी मैं कह रही हूँ एक बाजू में। तो वो क्या हो रहा था कि वो माताओं से, जो बच्चों की माएँ थी उनके साथ बात कर रहे थे, उनका पूरा कवर अप कर रहा था, और हम ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि प्लीज आप नहीं करो इस समय उनसे बातें। वो एक तो ट्रॉमेटाइज थी, एक्साइटेड थी, और कैमरा मेरे सामने एक अलग एक्साइटमेंट होती है, मैं टीवी पे आने वाली हूँ, एक अलग एक्साइटमेंट होती है, तो वो कुछ बोल जाएगी, और ऐसे ही हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो पूरी कम्युनिटी में वो सब ग्रुप एक्सपोज हो गए, क्योंकि वो लोग ऐसा कुछ बोल गए शायद जो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सिचुएशन बदलेंगे। पर आपको ये पता है क्या, हम लोग एक केस था जिसमें एक बच्ची को उसका पड़ोसी बहुत हैरेस कर रहा था, झोपड़पट्टी की बात थी, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। झोपड़पट्टी में एक बच्ची को बार बार रेप किया जा रहा था और उसका पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा था। शी अप्रोच अनुराधा एंड दे अप्रोच द कमिश्नर एंड दे हैड ए बिग फाइट कि आपका पुलिस कर क्यों नहीं रहा है कुछ बार। इट्स ए रूटीन कंप्लेन। ये आप सब मानोगे कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन नहीं होती एट वन गो, सो यू हैव टू प्रेशराइज द पुलिस, आई डोंट नो फॉर अननोन रीजंस। तो उस समय अनुराधा ने जाके जब केस रजिस्टर कराया, लड़ाइयाँ की, तो हम मीडिया सेंसिटाइजेशन की बात तब कर सकते हैं जब पुलिस सेंसिटाइज हो, जब पब्लिक सेंसिटाइज हो, जब लोगों के मन में एक जस्ट रिस्पेक्ट हो किसी घटना के लिए, दुख हो। सो दैट इज द थिंग। लेकिन जहाँ तक लोगों को कुछ चीजें बताए नहीं जाती तब तक सेंसिटाइज नहीं। yes, very जैसे अगर मैं उदाहरण देतो, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या एका जिल्ह्यात एका गावामध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाला, येस इतकं प्लेन सांगितलं, एक फर्स्ट लाइन होगा मेरा लीड जो है, और पिछले 6 महीने से एक शुरू था, गांव में रहने वाला एक 26 साल का युवक, उसने उसकी बगल में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची के साथ में अत्याचार किया। हम पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। हमने अगर ये कहा कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में श्रीनगर स्कूल है, वहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के, एटलीस्ट उस स्कूल के पेरेंट्स जो है, आसपास वहाँ पे जो लोग हैं उससे जुड़े हुए, वे लोगों को पता चलता है, फिर वहाँ पे प्रेशर बनता है, फिर वहाँ पे जैसे मंदार ने कहा है, और उस केस में तो उस केस के बाद ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए स्कूल बस के लिए कि उसमें सभी जगह अभी वो रूल्स सभी जगह। उस केस के बाद मीडिया ने उतना उसको ये किया, दिखाया, उसको आप कह सकते कि सेंसिटाइज किया, लेकिन मीडिया ने अपने तरफ से दिखाया। इसके लिए ऑल ओवर स्टेट, हमारे पूरे स्टेट में एक रेगुलेशन उसके लिए बनाया गया। दूसरी बात में जो मैडम की आती है, मैडम शायद बताएं कि फॉलोअप नहीं रख सकते, तो प्रिंट मीडिया जहाँ तक हमें पता है तो अच्छी तरह से फॉलोअप रखते हैं। कोर्ट बीट होता है, क्राइम बीट होता है, वे लोग जो है हमेशा स्टोरी को बिल्कुल ये रखते हैं। जहाँ तक थोड़ी शिकायतें जिन्हें मिलके सुझाया जाए। मैडम तुम्ही सांगा कि प्रतिभा मैडम अच्छी तरह से बता पाएंगे कि फॉलोअप क्या क्या एक है प्रतिभा मैम के लिए बड़ा वाला क्वेश्चन प्लान किया हुआ है। बोलिए ना मैम। I don't want to go break the discipline of the panel discussion. नहीं please. Unless I am called, I am not in. अरे नहीं, it's a good discussion. But yeah, I want to respond to that is, see, when I am going to throw a light on a general broader perspective, as sir said it, because we are not adversaries. Let us understand this. We are here to form a kind of forum, a platform where we are not adversaries to each other. So let us not do this blame game to each other. Because yes, there are limitations of media, and the person sitting that side may feel it differently, but the person sitting this side knows the limitations. Let me clarify, ma'am, that there are so many major issues where media has been doing
consistent follow-up, so much so that the cases have been reverted. Take major cases on national level. See, because if I am fighting one case, I may feel that injustice has been done with me because my case is not followed my way. That perception may go, and I do not totally deny also the kind of blame on the media that the follow-up is not sufficient. But there are major cases where media has taken up the issues, and due to that, the whole pressure group has been created, mainly for the children's issues also, and we are not allowed to violate certain code of conduct, as sir said it. I'll speak mainly about television, because when television channels, private television channels were coming in India, there was a specific committee which discussed as to what content should be shown, and they have raised the all the major concerns also. Like, what is covered now is when there is a major crime against child labor cases, or child prodigy. Alright. Yeah. So these are majorly concerned, these are issues which are majorly discussed. But as one says, that there is no broader policy as to how the issues related to children should be covered. And there are studies, like UNESCO has done a study, the CVC Consortium for Children's Rights, the CRC, that has done a study, and they have specifically said as to what kind of content should go and what should not go. There was, as madam called this child and she asked few questions, let me tell you that there was a study done which was called as Bridge, and children, school level children were asked whether they are happy with the kind of content shown maybe on television, or whether they are happy with the kind of content that comes in the print, and they all found that it is all juvenile. Yes. See, this was coming from children. So I am not going to speak about case to case, but on a broader perspective. When this committee was formed, before the television channels were coming up, they raised one concern, major concern, that the kind of cases of violence which a child will see in his drawing room probably may not see once in his lifetime. 64,000 violent cases he may watch on television during his lifespan, which probably in day-to-day life he may not see it once, the kind of firing or whatever. So there were concerns, and I'm just opening it to broader discussion, so that we all form a kind of a discussion where we lead somewhere and not doing this adversary role to each other. Adversity नहीं ली जाए, बात हो रही है किसी कंस्ट्रक्टिव आउटकम की, क्योंकि यहाँ जो है हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए क्योंकि ये रिकमेंडेशन चाइल्ड राइट्स कमीशन जाए, ये हायर अथॉरिटीज जाए. यू आर मेकिंग अ हिस्ट्री मैम टुडे, एंड दैट इज व्हाई द टॉप नॉचर्स आर कॉल्ड एंड लिटरली किडनैप्ड दिस वे. मुझे आप लोगों को लिटरली इसीलिए बुलाया क्योंकि आपका हर पल का एक्सपीरियंस कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स लाएगा. And this won't be a dead conference. There will be a lead ahead, and Pratibha knows me, so I think she will agree कि हम छोड़ेंगे नहीं. Let me ask Rama ma'am. They have both husband and wife. They have been a crusader for the human rights. आज पुणे में अगर कोई जानता नहीं या उनका इंट्रोडक्शन की जरूरत कभी नहीं पड़ती. इसलिए रमा मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे वाले केसेस जहाँ मीडिया ने वायलेशन किया है, और मेरे लिए अगर समझो वहाँ पे वो जस्टिफाइड था और फिर भी वो आपके कोर्ट में आया है, आपके पास आया है जस्टिफाइड वायलेशन, तो उसको कैसे कोर्ट कंसीडर करता है या कैसे डील करना चाहिए? उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या, वे आउट? आई एम सॉरी बट आई हैव टू लीव आफ्टर दिस क्वेश्चन. The 2-3 points that I want to make is that I think NGO and media interface is very important as a check and balance on how the implementing agencies are also working. I remember long back in the very beginning of our own career, somewhere around the early 2000, बहुत बड़े एक न्यूज़पेपर ने, वेरी वेल नोन एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम बॉम्बे, हैड actually published the name of a child who was in conflict with law. So the moment we read it, we sent them a legal notice. But I think that just sending a legal notice does not suffice.
educating and that correspondence and communication also needs to be educative. And so we said the purpose was not to pull you to the court, but the purpose was to bring it to your notice that what you did was wrong और क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब हमने लिखे दिया था. So we are working very closely with the media because ultimately I think that they reach out to a much larger audience than you and I can reach. And I think if we can reach out to a larger audience with positive stories, I think that is what is going to also have an impact. So the discussions that have been happening here, I think that somebody said that what if the, like the Nirbhaya case, that the mother comes out with an identity. I think that's a very personal choice to make and it's very subjective. Not every victim would want to come out with that identity. And I think that personal choice also needs to be respected. That if somebody doesn't want to come out with that identity, let's not force them to come. And I know nobody forces because there are rules framed not to force. Also, I think a broader understanding of what is identity also, because we are just restricting with media to photographs and blurring the image and probably name of the child. But I think if we read POCSO, if we read the law related to sexual abuse, they have broadened the whole concept of identity of child also. जहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ नाम और फोटो तक वो सीमित नहीं है, लेकिन वो कौन से स्कूल में जाता है, कौन से मोहल्ले में रहता है, उसके पेरेंट्स कौन है, ये भी सब उसकी आइडेंटिटी ही है. क्योंकि बहुत सारे केसेस में जहाँ पे घर से ही किसी ने उसका अब्यूज किया है, अब भले उसका नाम मत छापिए, उसका फोटो मत दीजिए, लेकिन अगर वो अब्यूजर कौन है, वो पिता है, उसका नाम छाप दिया, तो फिर उसके बच्चे का आइडेंटिटी. मैम यहाँ एक प्रॉब्लम ऐसे आती है कि अगर मीडिया कुछ भी नहीं छापे, ऐसा छापे कि कहीं कोई ऐसी चीज हुई, तो वो ऑथेंटिसिटी मीडिया को प्रूव करना कठिन होता है. ऐसी सिचुएशंस में हाउ टू कम आउट विद अ सॉल्यूशन, आई थिंक यू गाइस शुड आल्सो से. Just one point that I want to raise here is that fine, I totally understand that they also have their limitations, and I know the number of defamation cases that or the notices that comes to them. I know that definitely. I think उनके पास वो information है और वो authenticity के लिए है, तो वो उनके पास रखे, वो reveal ना करे. तो अगर कोई, I knew a reporter from Times of India who used to come with a recorder so that nobody would say that you have not said this, and I appreciated it. So that she is also trying to protect her rights, which is fine. I mean, that's okay. So I think we should find out some other ways to also where the media's space is also protected, but at the same time the child's right is also protected. And I think media can do a much bigger role that I see is when you talk of most of the time, I mean especially in the child sexual abuse cases that I'm actually handling right now, बहुत बार जब parents को बताते हैं कि ये आपके बच्चे के साथ हुआ है, तो they find the honor of the family more important than reporting the case. At such a time, I think when the media is trying to report that case, they are also reaching out to probably lakhs and crores of parents whose children might have faced sexual abuse but are scared to report it. So I think इसका impact broadly children पे क्या होता है अगर आप एक report ना करो case, और वो injustice मेरे साथ हुआ है, ये अगर लेके अगर वो child बड़ा हो रहा है, तो उसका impact child पे क्या होता है, इसके बारे में अगर media लिखे, तो you're reaching out to a larger group of parents who will realize that by not reporting what wrong they are doing. So I think it's an interface where, जैसे एक case में I know that the police went to the school with uniforms. You're not supposed to go to school with uniform. Now this is something that the media should highlight so that implementing agencies know what wrong they are doing. Because the moment NGO takes a stand against the police, they don't want to entertain us and file cases. But when media takes it, I think they have to face the music. So that is the fact. Everybody is going through it, and we know हम रोज उससे गुजरते हैं. Mr. Yogesh Sadhwani, थाने में बहुत बड़ा इशू हुआ था. आई थिंक मैं चाहूँगी मिस्टर योगेश साधवानी आप खुद बताएं. इट वॉज ए हॉरिफाइंग थिंग. माइक रमा को जाना है, एंड वी विल मिस यू रमा, एंड 1000 थैंक्स टू यू फॉर योर प्रेजेंस. थैंक यू. Yogesh, we can continue. Sure.
Hello. Yeah. So, I mean, before I talk about the case, I want to respond to ma'am there. I was one of the journalists who was covering the Karjat Dabholkar case. I don't know if I'll be if she was the one who took it out. Yeah. So, you might, in fact, for the last 15 minutes while you've been talking on that case, there's no network here. I've been trying to look for a mail which I'll show you. You think journalists don't follow? I'd like to differ. That's one case which I follow on weekly basis. I've gone to court twice. I may not tell you, I have a copy of the charge sheet for which I've paid. I've bribed someone. It was filed by CID. I was very tempted to write about the charge sheet, but I knew that if I talk about the charge sheet right now, the case will get ruined. I remember speaking to you extensively where police went to the slums trying to find kids, and I remember fighting with the SP then, happened to be our ever famous Mr. R.D. Shinde then, if I'm not mistaken. So we constantly keep, I'm not generalizing. I'll give you my example of one of my cases. All of us are pathetic when it comes to this at some point of time or the other. It's not generalization. I can't say all journalists suck. I can't say all NGOs don't work. I can't say all doctors who are supposed to examine children are, running away from their duty. There are some in every segment who are doing their job. So all I'm trying to assure you, I'm not fighting with you, please. You're way too senior. No, I don't even have, my grey hair is more than yours. But trust me, it's because of time pass, not because of experience. But on that count, I must tell you that, some of us do follow up. If we get out and if there is network, I'll show you the Dabholkar case where I've constantly followed up with court. Your Karjat volunteer is in touch with me. I keep doing that regularly just so that I want to see what comes out of that case. And we've gone through that ups and downs, so we don't even need to discuss. एक लाइन बोलना चाहूँगी, I'm sorry. करजत केस में सेंसिटिविटी की अगर बात की जाए, आपको ये मालूम है कि अनुराधा बहुत डिस्टर्ब थी रात को 11 साढ़े 11 बजे कुछ इसने फोन किया था, एंड शी वाज टेलिंग, तुझे मालूम है क्या हुआ? करजत में विक्टिम्स और ऑफेंडर्स को पुलिस ने एक गाड़ी में बिठा के करजत से पूना लाया था. आर यू अवेयर बच्चों का क्या हुआ होगा? और कैन यू इमेजिन वो बच्चों का क्या हुआ होगा? वो ऑफेंडर सामने बैठे, पुलिस जिनका एटीट्यूड ही इतना श्रूड और रफ रहता है. कैन यू इमेजिन? In that home also, I remember. And she was crying and threw up in the jeep. Bachcha threw up in the jeep. In that home also, Anuradha ma'am, I remember in that home also, तो वो मी मारतो तू रड़वाला कर रहे थे वहाँ पे, जहाँ पे वो ऑफेंडर को वहाँ पे उन्होंने सामने खड़ा किया और वो 4-5 बच्चे कहीं से तो अलग अलग जगहों से लाए थे. तो वो दिन मैं भी था. I remember then also you raised the point, we fought. There were of course some of my colleagues who were very interested in getting sound bites from mothers and children. I personally refrained from doing that. If anything, I was trying to take the children. So she was busy doing her bit. She had her team. My job there as a journalist, not just as a journalist, but as somebody who's been fighting for child rights for a while now, was to make them feel comfortable. I wasn't asking them their names. I wasn't asking what the parents do. I just kept telling him, I remember there was a 13 or a 14-year-old boy, and I just put my hands around him and I said, "Chal bazula apan jao." And I remember, so obviously my own colleagues with cameras and my own photographer, in fact, one of them I remember, I had a team of 2 photographers and he was so interested in taking pictures. I remember abusing him. I don't abuse a lot, but at that point of time, I remember abusing him and telling him, there are ways of taking a photograph. I want that photograph. Of course I want that photograph. But how do I want that photograph? I want that photograph from here. I don't want that photograph from here. I don't want the child's face to be seen. I won't be able to use that photograph in any case. Whereas if I take the child's photograph from back, and if I'm able to show the accused there, I'm able to do 2 things. I'm able to show the victim and I'm able to show the accused, and I'm able to establish the fact that accused and the child were brought together. So these are battles. But I'll tell you about the 2010 case where I thought everybody just ruined it. Everybody, including the media. So there was a particular case where we had a specific tip-off of a home, ashram, for mentally deficient children in Shahpur. Back then there were no laws preventing us from, not do this, not do that. Protection of Children Against Sexual Offences Act was not in place. So we had to use our own judgment there. There was no
There were no parameters as such. JJ Act was also, most of us, I mean including the CWC and the NGO involved, did not know what were the provisions, what sections to apply. I sat up all night with a lawyer and then we came up with those things. So we got a tip off. My wife's also a journalist. She's also an actor. So I said, will you act for me? She said, yes. She got hold of another Marathi cinema actor who was her friend, and I got hold of my photographer and I told him, look smart today. And I also tried looking smart. It's very difficult for me to do that. But I shaved, I went for a haircut, I wore formals. So we were posing as employees of a call center who wanted to help those children, mentally deficient children, lodged in a home. We were told there are 25 of them, few may have died by then. There were some being starved, the ones who were not well were locked up. कि मरी जाए तो नया बैच आएगा. It was a recognized home, so commit होते थे CWC से, उस शेल्टर में आते थे, एक बच्चे के पीछे 1050 रुपया वो संस्था को मिलता था. It was like a beautiful racket, amazing racket. Like I wish there was another way of making easy money. So they were doing this, and when we went there, so the four of us just pretended we obviously were, we had spy cameras, and हमने कुछ 3-4 हज़ार रुपए का ऐसे बिस्क किए ये वो, because we were from a call center, from a BPO in Powai, wanting to donate. We got free access to the home. वो जो मालक था उस जगह का, he was away and he spoke to me and he said, हाँ बगा जे करायचं ते करा. We went around, we spoke to children, our spy cameras were on, and there was no point in speaking to children because they were all mentally deficient. Most of them were not even, they were, eventually we figured that after some counseling, 2 of them turned out to be borderline cases, but most of them were gone cases. I wish I could show you those pictures of how, eventually I was stopped from printing those pictures. So it turned out that there was massive abuse. There was no evidence of sexual abuse initially.